Hello dear student, welcome to the lecture. This is our first lecture of basic physical chemistry of 11th standard. Those students who are preparing for the NEET JEE examination as well as you are preparing for the board examination, this chapter is very much important because much more weightage is there in physical chemistry. Various topics are there which deals with the physical quantity. Okay, so we have to understand the basic. जब हम बेसिक स्टडी करेंगे तो हमें आने वाले जो टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो बेसिक ग्राउंडिंग है, जो ग्राउंडिंग लगता है, जो बेसिक्स लगता है, वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। उसमें से फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, देखो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है, यू नो द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ओके, वी नो द ब्रांचेस ऑफ chemistry, that is physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry. Various disciplines are there. Okay, so physical chemistry is one of the discipline of chemistry which deals with the study of physical properties of matter. So those physical properties, which are those? So physical chemistry deals with the study of okay, physical properties of matter. तो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है ना। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी, मास इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, मैटर है तो मास ऑक्युपाई करेगा, है ना। वॉल्यूम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, ओके। देन मास है, वॉल्यूम है, देन डेंसिटी है, डेंसिटी इज फिजिकल प्रॉपर्टी। देन concentration we are measuring in terms of moles. Okay, so we will we have detailed discussion on the mole concept in this chapter. So concentration is also physical properties. Okay, then optical properties or optical rotation. Okay, or we can say that is refractive index. Refractive index, it is physical property. Okay, then heat capacity, physical property. Enthalpy, physical property. Okay, entropy, physical property. So during your part of syllabus 11 as well as 12, we will deal with these physical properties during chemical reaction. देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के फिजिकल पैरामीटर स्टडी करते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है ना, जैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में रिएक्टेंट A and B is going to convert into product C and D. So during this chemical reaction, what are the physical parameters that are going to change when reactant R is converted to product? For example, what is the enthalpy change? Delta H, change in heat energy. Whether heat energy is evolved, whether heat energy is absorbed. Okay, change in heat energy. So such type of, whether the refractive index, whether the concentration of the reactant is going to change, whether the concentration of reactant and product are same, what are the rate of change of concentration at particular interval during the reaction. तो इस तरह की स्टडी हम क्या करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में किया करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट है आज का जो हमें डिस्कस करना है, इसका नाम है मोल कंसेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नीट जेईई एज वेल एज सीटी एग्जामिनेशन। चाहे बच्चा कौन सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, मोल कंसेप्ट उसे करना ही करना होता है। ओके, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी से सॉल्व हुआ करते हैं। ओके, तो बहुत जगह पर हम
इस मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखते हैं मोल का मतलब होता क्या है ना। मोल कंसेप्ट होती क्या है और एक मोल बराबर कितना होता है ना। देखो किसी भी चीज का हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना हो है ना, जैसे हमें मेजरमेंट करना है किसी चीज का, तो हम कैसे मेजर करते हैं? वी आर मेजरिंग दी number of things in terms of their number 1 2 3 4 5 okay, so we will measure the, suppose हमें मेजर करना है ग्रॉस मेजरमेंट करना है। जैसे मान लो मुझे कुछ चीजें ज़्यादा लेनी है ना, जैसे मान लो आप बनाना लेने गए है ना, आप बनाना खाते हो, सबको बनाना पसंद है। जैसे मान लो आप फ्रूट स्टॉल पर गए और आपको बनाना परचेस करना है, तो आप कैसे करते हो? आप कहोगे कि मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, मुझे 2 डजन बनाना चाहिए। तो डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन का मतलब होता है 12 पीसेस, इजंट इट? सो इसी तरह से जो मेजरमेंट, जो चीजें होती है, ज्यादा पैमाने पर अगर मेजरमेंट करना हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल को मेजर ना करते हुए उसको एक ग्रॉस मेजरमेंट करते हैं। उसी तरह से देखो हमें पता होता है कि हम बचपन में पढ़े हुए कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, दीज आर दी माइन्यूट पार्टिकल। देखो एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना। अगर एटम इतना छोटा है, देखो तो एटम को अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, मान लो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने, तो कैसे करोगे? देखो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं तो एटम्स तो बहुत छोटी होती है, एटम बहुत छोटा होता है, ओके। तो इसी वजह से हम नक्स में मेजर नहीं करते, हम मोल्स में मेजर करते हैं, है ना। इसी वजह से हमें जो मॉलिक्यूलर एंटिटी है, चाहे वो मॉलिक्यूलर एंटिटी हो या फिर वो एटॉमिक एंटिटी हो या फिर फार्मूला मास एंटिटी हो, ओके। चलो देखते हैं हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, है ना। रीडिंग देते हैं यहाँ पर मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। चलो first of all we will define what is meant by mole. So mole is nothing but it is number of particles or elementary entity or elementary entities having mass exactly equal to 12 gram of C12 atom, C12 atom। चलो डिफाइन कर दिया हमने, इट इज amount of substance that contain, it is number, okay, or it is amount of substance, that contain number of particles or elementary entities having mass exactly equal to 12 gram of C12 carbon atom, ओके। चलो ये हो गया 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल का मतलब है 1 मोल इज इक्वल टू it is number of atoms or elementary entities or
molecules or it may be formula unit present having mass exactly equal to 12 gram of C12 carbonate. 12 gram of C12 carbonate. Okay. चलो इसे कॉपी कर लो। देखो शुरू में क्या हुआ कि ये जो मोल कंसेप्ट है, ओके, इससे हमने कोरिलेट करना शुरू किया कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने एलिमेंट्री एंटिटीज होती है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और कितने फार्मूला यूनिट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स में भी, एक में भी सोडियम, इट में भी पोटेशियम, इट में भी क्लोरीन, ये हो गया हमारे एटम्स। ओके, एलिमेंट्री एंटिटीज, ओके, एलिमेंट्री एंटिटीज अगेन सेम, इट में भी सोडियम, पोटेशियम, chlorine or any elements, okay, or it may be cations or anions, sodium cation, potassium cation, chloride, anions, okay, it may be molecules का मतलब होता है जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, ओके, ऑक्सीजन इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, ओके, देन carbon dioxide, okay, nitrogen, oxygen, then helium, they are exist in the diatomic molecules, okay, then formula unit, जैसे मान लो formula unit का मतलब होता है NaCl, KCl, okay, और any salt, okay, देखो इसमें क्या है, एक सोडियम कैटायन है और एक क्लोराइड आयन। तो देखो चाहे मेरे पास कितना भी सोडियम क्लोराइड हो, अगर मुझे सोडियम क्लोराइड का मास बताना है तो क्या होगा, मैं एक सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम कैटायन और एक क्लोराइड आयन का ही मास काउंट करूंगा, है ना, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द क्रिस्टल लैटिस। सोडियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ओके। एक क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं, there are 8 atoms at the 8th corner, total number of atoms per unit cell it is 1, okay, therefore we have the formula unit that is Na plus Cl minus, okay। तो 1 मोल का मतलब क्या है, it is number of atoms, number of elementary entities, number of molecules, formula unit which is having the mass exactly equal to 12 gram of C12 carbon। तो यहाँ पर C12 कार्बोनेट का मास कितना है ना, यहाँ पर C12 कार्बन की जो आइसोटोप है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड दैट इज फाउंड दैट the 12 gram of C12 carbon isotope having the mass that is 6.02204, that is the mass of 12 gram of carbon atom, C12 carbon। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, सिक्स पॉइंट 02204 into 10 to the power 23, it is the in gram, okay, it is mass of 12 gram of C12 carbon atom, okay। इसका मतलब क्या है, देखो ये यहाँ पर मास ऑफ 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन है,
अगर ये एक नंबर है तो इसको यूनिट नहीं होगा, अगर ये कांस्टेंट है तो इसको यूनिट लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे बताना है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितने कार्बन एटम है, मेरे पास 6.022045 into 10 to the power 23 atoms of carbon C12। ओके, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022045। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस this number is known as, this number is called as Avogadro number। Avogadro number, and it is denoted by sign Na, denoted by sign Na, Avogadro number 6.022। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, इसको हम आगे से क्या लिखेंगे, 6.022 into 10 to the power 23, it is our Avogadro number Na, or we can say it is our Avogadro number, Avogadro number। अगर आपको एवोगाड्रो कांस्टेंट चाहिए, ओके, अगर एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, ये नंबर को तो यूनिट नहीं होता, लेकिन अगर आप एवोगाड्रो नंबर की जगह पर आप एवोगाड्रो कांस्टेंट लिखोगे तो उसको यूनिट आएगा एवोगाड्रो कांस्टेंट। ओके, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू जो है 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम पर मोल is equal to our Avogadro constant। ओके, जैसे मान लो हम और कुछ एग्जांपल करते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 है, if I have 1 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ O2 है, इसका मतलब मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, ओके, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब है मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर आप कहते हो मेरे पास 1 मोल ऑफ Cl2 है, इसका मतलब अगेन सेम है, मेरे पास कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 6.022 into 10 to the power 23 Cl2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो सेम है, मेरे पास कितने सोडियम है, 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम एटम्स, Na एटम्स। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल क्या है, 1 मोल ऑफ बेरियम कैटायन है, Ba+2, तो मेरे पास कितने बेरियम +2 कैटायन है, मेरे पास 6.022 into 10 to the power 23 Ba+2 कैटायंस। इसका मतलब साफ साफ है कि एवोगाड्रो नंबर जो है, मोल कंसेप्ट जो है, उसका मतलब सीधा सीधा क्या है, 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। इट में भी अगर ये ग्राम है, ग्राम पर मोल है, इसका मतलब क्या है, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट है। अगर यूनिट नहीं है तो एवोगाड्रो नंबर है। नंबर का मतलब होता है इट में भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ओके, इट में भी एटम्स, और इट में भी कैटायंस, एनायंस, और एनी फॉर्मूला यूनिट। ओके, डू द कॉपी, देन विल डिस्कस फर्दर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज। जैसे हमने अभी देखा कि अगर मेरे पास 1 मोल है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितनी एलिमेंट्री एंटिटी है,
1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एलिमेंट्री एंटिटी होती है. इट मे बी मॉलिक्यूल्स, इट मे बी एटम्स, इट मे बी फार्मूला यूनिट. ओके, इट मे बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज. यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे. यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले. नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज is equal to number of moles of substance into Avogadro number Na. ओके, अगर आपको किसी की एलिमेंट्री एंटिटी निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू एवोगाड्रो नंबर Na. अगर आपको किसी की नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करो. सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को इधर लाओ, एलिमेंट्री एंटिटी को उधर ले जाओ. ओके, तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, है ना? यही फॉर्मूला बनेगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज अपॉन Na, एवोगाड्रो. ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखना हमेशा, ये आपके काम में आएंगे. इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं. चलो फॉर्मूला लिख लो एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं. वी हैव क्वेश्चंस. Okay, we have question number 1. A sample of nitrogen gas consists of 4.22 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen. How many moles of nitrogen are there? How many moles of nitrogen are there? ओके, चलो यहाँ पर हम प्रॉब्लम देखते हैं. सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 4.22 into 10 to the power 23 molecules. So what is given? We are provided with number of elementary entities. मतलब नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन एक कैसी गैस है? एक डायटोमिक गैस है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. ओके,
ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसमें कितनी एलिमेंट्री एंटिटी दी हुई है, यहाँ पर 4.22 इंटू 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटी। इसका मतलब है ये हमारी एलिमेंट्री एंटिटीज है। एलिमेंट्री एंटिटी का मतलब इट में बी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, इट में बी फॉर्मूला यूनिट, इट में बी कैटायंस, इट में बी आनायंस। ओके, दैट आर एलिमेंट्री एंटिटीज, एलिमेंट्री एंटिटीज। ओके, तो अगर हमारा फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या फॉर्मूला है? अगर हमारे पास एलिमेंट्री एंटिटी दी हुई है तो उससे हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब कितना है? 4.22 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय Na, that is Avogadro number. It means that is 4.22 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 20. So यहाँ पर 23 कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ओके, क्या बचा है यहाँ पर? 6 7 42, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.7 बराबर, ये कितना आएगा? 0.7 मोल। सिंपल है। ओके, आएगा? मतलब 4.22 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके, इतनी एलिमेंट्री एंटिटी में कितने मोल्स होते हैं? 0.7 मोल। देखिए, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल इसका कोरिलेशन कर सकते हो। हमें रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है? देखिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मच एलिमेंट्री एंटिटी? That is 6.022 into 10 to the power 23 elementary entities। 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस की इतने सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होते हैं। अगर 1 मोल में इतने हैं, है ना, अगर 1 मोल में इतने हैं तो इतने एलिमेंट्री एंटिटी के कितने मोल बनेंगे? अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस करस्पॉन्ड टू 6.022 into 10 to the power 23 elementary entity, therefore 4.22 into 10 to the power 23 correspond to how much moles? ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा 1 इंटू 4.22 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। आंसर तो सेम ही आ रहा, कितना? 0.7। चलो बात समझ में आ गई। आप दोनों भी तरीकों से कर सकते हो, है ना। आप कोरिलेशन कर सकते हो। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का मतलब होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब होता है इतने सारे एटम्स और इतने सारे एलिमेंट्री एंटिटी। एलिमेंट्री एंटिटी का मतलब ही होता है इट में बी एटम्स, इट में बी मॉलिक्यूल्स, इट में बी कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स। ओके, चलो डू द कॉपी, देन वी डिस्कस फर्दर। चलो, इसी तरह का एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। इसको लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, आगे डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, in metallic piece of magnesium, in metallic piece of magnesium Mg, 8.46 into 10 to the power 24 atoms are present calculate number of moles of मैग्नीशियम के कितने मोल्स यहाँ पर बनेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो, इन मेटालिक पीस ऑफ मैग्नीशियम हाउ मेनी एटम्स, 8.46 into 10 to the power 24, मतलब एक मैग्नीशियम का ऐसा पीस दिया है, इस पीस में कितने सारे एटम्स हैं, इस एक पीस में कितने एटम्स हैं, इस एक पीस में एटम्स है 8.46 into 10 to the power 24 एटम्स है। ओके, ये हमारा गिवन सैंपल, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। आप दोनों भी तरीकों से कर सकते हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या फिर कोरिलेशन करो। हमारा फॉर्मूला क्या है, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो फॉर्मूला से करेंगे पहले। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles elementary entity divided by Avogadro number, that is Na, Avogadro constant. Okay, so number of moles is equal to number of elementary entity यहाँ पर दी हुई है, ये कितनी है 8.46 into 10 to the power 24 है, 24 डिवाइडेड बाय Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, वो कितना होता है 6.022 into 10 to the power 20। ओके, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कैलकुलेशन, कितना आएगा, देखिए ये 24 है, ये 23 है। अगर मैं इसको 0.6 लिखूं, ओके, या फिर इसको इसकी एक पावर कम कर दो, जैसे मान लो 0.8 डिवाइडेड बाय 6, 0.8 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, ओके, ये बन जाएगा आपके पास 14.053 14.053। ओके, ये आपके मोल्स बनेंगे। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ये भी सही तरीका है। अगर आप कोरिलेशन करना चाहते हो, आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हो, तो इससे भी कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास कितना है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms, therefore 8.46 into 10 to the power 24 atoms correspond to how much number of moles। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर कितना आएगा, सो मोल्स कितना आएगा, मोल्स विल बी इक्वल टू, मोल यहाँ पर कितने बनेंगे, मोल बनेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पर 1 into 8.46 into 10 to the power 24 divided by 6.022 into 10 to the power 23। ओके, यहाँ पर 6 1 का 6, ओके, ये बचे 2 बचे यहाँ पर कितने है 24, तो 6 4 का 24, 6 4 का 24, ओके, 14.053 into 10 to the power 20। ओके, ये मोल्स है, इसकी क्वांटिटी नहीं, पावर कैंसल आउट हो जाएगी, इतने क्या बनेंगे हमारे मोल्स।
आप दोनों भी तरीकों से कर सकते हैं। ठीक, चलो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज के किसी भी सब्सटेंस की मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डू वॉच आवर वीडियो, प्रिपेयर योर नोट्स, स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच।